Let's get started. Initially, we had a brief. So, inheritance, general term. Inheritance is a general term that we that inherit करना, acquire करना, receive क्या रहते. तो in general जब आप where why you inherit, आप आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज, पेरेंट्स से, that's how there is no able to, there must not only property like you are having the like your parents. So you are at the risk. So that is a general inherit करना, acquire करना. There are two objects. One is at the sender. This is one object, another object. So we are acquiring or inheriting properties, one object one, and this called as parent. The child is one object trying to from one object. Not only property will acquire, it will acquire properties. And what inheritance term in that is simple बात. Now coming to the technical front, this is one of the pillar of of. As you know, if it is a pillar means actually, when I talk about oops, all of this talking about object. To be may words, all of they are talking of object बारे में बात. Everything is whatever the we are discussing. First term we discussed was capsule. We started with the inheritance. We are going to these are pillars of your what are the. So all of these terms, whatever the terms, all of these are talking about the object. All of these are the object. ये सब के बारे में बातें हो रही आ रही है. सबसे पहला वाला जो कैप्सूल, ये क्या स्पेसिफिक, जो आपका ऑब्जेक्ट डेटा, तो यू शुड योर डेटा मेमोरी कैप्सूल टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट बारे में बात. ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर थिंग अबाउट ऑब्जेक्ट. All about we are talking about object security. Now, second concept we are talking about, that is inheritance. There is one already, and how do we create object? So you can think there is already that class. So that object will have what properties, and there is one object that is created using. Now you have this particular object. This object a class. That object is created. So class has a lot of so
that object, what it will allow tables. And now I want to, now there is another object. Now I will create another object. I will create another object by using the, I want to do, plus you will add some extra. You will create a new object by using object, plus uh, you have already one object, and uh, that object you already have where you have defined all the. Now using that object, you want to create multiple other objects. Now the plus your own, what is inheritance is about that one can of all of these terms whatever I have written, all of they are talking of these are about object. Object के first one is object. Your second thing is one object's data methods can be acquired by object. We will create a new object by using our existing. That is what in. तो इनहेरिटेंस किसको बोलना है, तो व्हाट इज नॉन प्राइवेट members from one class. What is encapsulation? Is a process of binding in order to. Then we have polymorphism. Polymorphism is also talking about the object. Poly means morph means form. We are talking about many. Object has two things. Behavior. Object has state and online. My screen is visible properly. Okay. So what polymorphism is saying? Poly means morph means many. The object can have many. All of us are all of us are objects. All of us are objects. So do we have the different? Now the behavior I have multiple. But what it means? Let's say I talk with a lot of people. Talk with you. सबके साथ में सेम तरीके से. The behavior name is same. Talk. बात करना. लेकिन the way I speak, the way I will talk with my, way I talk, way I speak. The behavior name is same. Behavior name is, but the way I behavior, जो body होगा. So it is saying that polymorph, one object can have the. क्या बात हो रही है polymorphism के बारे में कि एक ऑब्जेक्ट को मल्टी also behave have different behavior at different. They are who is talking about object की object will have multiple behaviors. Behaviors मतलब method. Then abstraction, it is also object. So what abstraction says? Abstraction says hiding. It is also talking about the hiding. यहाँ पर आप क्या करते हो? Data hide करते हो. Object का data hide करते हो. यहाँ पर क्या hide करते हो? Body. Here we hide the or behavior. Example, you withdraw the money, object withdraw the ATM, right? You withdraw the money, object is withdrawing the money. How you are withdrawing the money? Actually, how the pin or how the money is, how the cash is. के बारे में आपको कुछ. So you are abstract. How in you are able to perform the.
So we are talking about object identity, ये नहीं बता आप फंक्शनल क्या करना है आपको, बस फंक्शनल आ रहा है। जैसे आप मोबाइल फोन कॉल करते हो, आप बस नंबर डायल करते हो, बट बिहाइंड द सीन कैसे कॉल चलता है आपको पता है क्या? आपको आपको कुछ पता है नहीं, दैट इज abstract, मतलब आपसे हिडन है। ऑल ऑफ द थिंग्स इफ केयरफुली, ऑल ऑफ दीज आर अबाउट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला इनकैप्सुलेशन, आपका ऑब्जेक्ट का डेटा सिक्योर होना चाहिए एंड हाइड वे डेटा शुड बी सिक्योर। और दूसरा इनहेरिटेंस कौन बारे में बात कर रहा है? इनहेरिटेंस इज टॉकिंग वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर। यहाँ पर कोड रीयूज की बात हो रही है, जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उसके जैसे कोड। थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स एंड मॉर्फ मीन बिहेवियर या फॉर्म या मेथड। Object can have multiple methods, object can have and then finally abstraction. So abstraction का मतलब होता है you hide functionality, hide the functionality, मतलब functionality कैसे काम। so that is what all these सारी चीज के बारे में बात हो रही है। हमने इनकैप्सुलेशन में पढ़ा था, स्टार्ट किया था। तो इनहेरिटेंस को हम डिफाइन कैसे, इनहेरिटेंस का मात्र यूज क्या है? यूज द कोड, री यूज का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई क्लास डिफाइन करी है, लेट्स से आई डिफाइन अ क्लास, I define a class and I write some methods, write some methods, of things like that. I have a class, the class A, and there I define lot of variables. I define 100 variables. I define methods are around let right. Now this class contains lot of variables, and so I define multiple other classes, and I need exactly same methods, some same variables here also. One option is you can define all of this, plus you can write your own one option. Again, I need to define another classes, lot of this class C. Here also I need the code as it is, plus I need to write my own. And like this, I have hundreds of classes. Now, hundreds of where I need to have this, where I need to have this class thing. I have class N which needs some data and मतलब जो कोड आपने एक बार लिखा है, ये वाला कोड, इट इज सिमिलर एट 100 अदर प्लेस। तब आपको सेम कोड, पहला ऑप्शन क्या है? सारी क्लासेस में एज इट इज होगा क्या कि आपका कोड होगा, कोड होगा डुप्लीकेट। तो आप बोलोगे इतने सारे क्लासेस क्यों, एक ही क्लास में काम, विल से दैट राइट। बट आपके पास, मैंने कल आपको एग्जाम पास पहले बस बैंक अकाउंट हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता, बैंक अकाउंट। तो लेट्स एज्यूम दैट कि ये मेरा बैंक अकाउंट है। पहले मैंने एक बैंक अकाउंट, सबके लिए एक ही बैंक अकाउंट, ज़्यादा कुछ डिफरेंस। बट लेकिन अभी 2023 चल रहा है, बहुत आपके पास बैंक अकाउंट, आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, एफडी अकाउंट या आरडी अकाउंट। देन सेविंग्स अकाउंट में भी आपके पास मल्टी टाइप्स है। आपके पास लेट्स से रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, देन वी हैव गोल्ड सेविंग्स अकाउंट, प्लैटिनम सेविंग्स अकाउंट एंड सो। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप अकाउंट्स है। आपको अलग अलग क्लासेस बना, अगर एक ही क्लास बनाओगे तो कैसे मेंटेन, विल नॉट बी एबल टू मेंटेन, क्योंकि गोल्ड अकाउंट का डेटा भी थोड़ा बहुत अलग होगा, बहुत सारा डेटा भी कॉमन होगा, बहुत सारी इवन दो योर अकाउंट टाइप इज
गोल्ड या प्लेटिनम बेसिक आपको पैसे ट्रांसफर करना, कोई भी अकाउंट हो, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन? बैलेंस चेक, विड्रॉ करना, ट्रांसफर करना, ये सब के लिए होगा ये। दिस फंक्शनलिटी इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द अकाउंट्स, बट एवरी वन विल हैव सम डिफरेंट। तो इन सब के लिए अलग अलग बेसिक तो होगी प्लस सम। तो आप एक क्लास के साथ मैनेज, तो आपको कंपनी और एक क्लास आपने डिफाइन किया और उसका कोड आप बहुत सारे क्लासेस में यूजिंग द डिफरेंट एंड डिफरेंट। अगर आप नहीं यूज कर इनहेरिटेंस, अगर आप इनहेरिटेंस व्हाट हैपेंस आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो? आर परफॉर्मिंग। अगर आप कोड डुप्लीकेट करते हो, अगर इनहेरिटेंस यू आर गोइंग टू कोड, जावा खुद इतना ज्यादा इनहेरिटेंस, बहुत ज्यादा जावा भी। तो if I do not use inheritance, what is the problem? Problem is we will write lot। क्या होगा अगर आप inheritance, what happens? You will write lot of duplicate, so to avoid code duplicate, so inheritance, ठीक है? Let me define one by one what is inheritance. So as we know that technically it is a process of acquiring or inheriting the non-private, non-static members। non-static member का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल, के बारे में बात हो रही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और इनहेरिटिंग नॉन प्राइवेट नॉन फ्रॉम वन क्लास ठीक। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टॉक्ड अबाउट, व्हाट इज इट? यस यस परफेक्ट। नॉन मेंबर्स मतलब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। इट एक्वायर्स यूजिंग it acquires properties and behaviors, properties and आप एक वर्ड में लिख रहा हूँ, स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट एंड बिहेवियर। और स्टेट को क्या बोला जाता है पता है? स्टेट को बहुत सारे नाम से, स्टेट को प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप, वेरिएबल्स बोल सकते हो, या फील्ड्स बोल सकते हो, या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो, बहुत सारे नाम से, बट सबका मतलब एक ही है। एट्रीब्यूट्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल्स। एंड बिहेवियर को क्या बोलोगे आप? बिहेवियर यू विल टॉक अबाउट मेथड्स, ऑपरेशन, फंक्शनैलिटी। बिहेवियर, बिहेवियर को आप इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हो या फंक्शन भी बोलते हो या टास्क भी बोल सकते हो आप इसे, बहुत सारे नाम से, लेकिन सबका काम ठीक है। इट एक्वायर स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट एंड बिहेवियर में दो टर्म यूज कर रहा हो तो ये थोड़ा यूज होता है, स्टेट एंड बिहेवियर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट से बोल सकते, वन क्लास टू अनदर क्लास। पेरेंट एंड चाइल्ड मतलब वो रिलेशनशिप बन जाता है जब आप एक्वायर करते हो तो, राइट? तो यू कैन से दैट वे आल्सो, फ्रॉम वन पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास भी बोल सकते। So why to use this? Why to use inheritance? If I do not use inheritance, what is the problem? If I use inheritance, what benefit we get?
we use inheritance to reuse the, ये चीज के लिए इसको हम कोड को रीयूज करने के लिए, ठीक। तो हम इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज, हाउ टू रीयूज द कोड, टू रीयूज द कोड और इनहेरिट द कोड, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स है। वी डिफाइन अ क्लास विथ कॉमन डेटा एंड सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, एक क्लास, मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं, देयर माइट बी सम ऑलरेडी क्लास देयर माइट बी सम अदर क्लास, वी डिफाइन अ क्लास विथ कॉमन डेटा एंड मेथड्स, और मे बी देर इज ऑलरेडी क्लास प्रेजेंट। तो पहले क्लास भी प्रेजेंट हो सकती है, हम भी खुद लिख सकते हैं विथ सम डेटा एंड, तो हम खुद लिख सकते हैं क्लास, या किसी और ने ऑलरेडी बना के रखा होगा। देन व्हाट वी डू, वी क्रिएट another class and use extends or implements keyword along with the class name of a class which we want to reuse the code, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, we will create the object and start using the variables and methods। क्या करेंगे हम, पहला क्लास डिफाइन होगा, स्टेप 1, फिर उसके बाद दूसरा आपका खुद का क्लास बनाओगे, और यू विल यूज एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स। एक्सटेंड्स इम्प्लीमेंट्स कौन सा कब यूज करना, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट यूजुअली वी यूज एक्सटेंड्स फॉर द क्लासेस एंड इंटरफेसेस वी यूज इम्प्लीमेंट्स, वी टॉक अबाउट दिस। देन उसके बाद क्या है, you create the object of that class, right, and you start using the members, that is a simple। now ये actual example में we will talk about that कैसे करते हैं extends और implements। now let's see this types of inheritance। क्या क्या types है आपके पास, you have single level inheritance, then multi level, then cyclic inheritance we have, then multiple, then hierarchical we have, then hybrid। ओके, तो बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, हमें एक और वर्ड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ एज पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अभी के लिए बस मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरफेस क्या कॉन्सेप्ट है, इंटरफेस क्या है, अभी के लिए बस इतना बेसिक याद रखो, इट इज ए टाइप ऑफ अ क्लास, मतलब ये भी क्लास ही है, इट इज ए टाइप ऑफ अ क्लास विच इज इनकम्प्लीट। और नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस मच, मोर देन सफिशिएंट। हाउ डू वी क्रिएट, एग्जाम्पल, जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं, राइट, क्लास के लिए क्या क्रिएट करते हो आप, क्लास कीवर्ड यूज करते हो, राइट। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आप इंटरफेस क्रिएट ऐसा वर्ड लगाते हो, इंटरफेस, और उसके बाद क्लास नेम जैसे लिखते हो, राइट। हाउ वी डिफाइन जस्ट लाइक अ क्लास ओनली, यहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड यूज हो रहा है, हम क्लास यूज करते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि इंटरफेस इज आल्सो टाइप ऑफ अ क्लास, इंटरफेस आल्सो टाइप ऑफ अ क्लास। गुड मॉर्निंग, इंटरफेस इज आल्सो टाइप ऑफ अ क्लास। थक गए क्या, इट इज अ टाइप ऑफ अ क्लास विच इज इनकम्प्लीट। अभी के लिए बस इतना याद रखो, हम डिटेल में एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ने वाले व्हाट इज इंटरफेस। अभी के लिए बस सिंपल सी चीज याद रखना है आपको,
इट इज एन इनकम्प्लीट क्लास। ठीक है, चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, व्हाट इट इज? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मतलब वन क्लास extends only one another class। क्या होता है? वन क्लास extends only one another class। Example, let's say we have a class A that is defined and we have class B extends class से। इस चीज को बोला जाता है सिंगल लेवल। क्या बोला जाता है इसे? सिंगल लेवल। और यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स inheritance represents is a type of relation। ठीक, उसके बाद हाउ पार्ट हम पे आए थे। यहाँ पर हमने डिफाइन किया एक क्लास, दूसरा एक और क्लास डिफाइन किया और हमने यूज किया एक्सटेंड्स कीवर्ड। यहाँ पर जैसे एक्सटेंड्स कीवर्ड किया था। यहाँ पर आपको एक और चीज आपको याद रखना है, व्हाट इज पेरेंट क्लास और सुपर क्लास और बेस क्लास। क्या होता है ये? कोई पूछे तो आपको, इट इज अ क्लास which has common data and methods, and this class code is reused by other classes। And what is child class? Child or sub or derived class। ये क्या होता है? This is the class which inherits or acquires the members from another class। ठीक, अभी दोनों में एग्जाम्पल, लेट से मैंने कोई क्लास बनाया, class A, I have defined this class, I have defined another class B extends B। यहाँ पर क्लास B बना आपका, so who is parent here? Class A is parent, class B is a child। ठीक, तो यहाँ पर क्लास B देखो, यहाँ पर दिस इज अ वेरी डिफाइंड क्लास A B। तो B इज ए टाइप ऑफ A। इसको रीड कैसे किया जाएगा? हु इज चाइल्ड हेयर? B क्लास इज ए चाइल्ड क्लास। इसमें B इज ए चाइल्ड क्लास एंड A इज ए। इसको रीड कैसे करोगे? B इज ए टाइप ऑफ A से रीड करोगे आप उसे, B इज ए टाइप ऑफ B is a type of A। This is called as single level inheritance। Now, is it supported in Java? Is it supported in Java? Yes, it is supported in Java through classes as well as interfaces। Interface is also kind of a class, अभी के लिए याद रखो। तो दोनों ये सपोर्ट करता है, क्लास एज वेल एज इंटरफेस। ओके, व्हाट इज मल्टी लेवल? One class extends not many। One class extends another class and that class extends another class। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वन चाइल्ड क्लास, वन पेरेंट क्लास, वन पेरेंट क्लास एक्सटेंड्स अदर क्लास। ठीक, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? नाउ हियर इज दिस एग्जांपल,
क्लास ए, बी एंड सी। सी एक्सटेंड्स, यहाँ पर आपका ए क्लास is extended by B class, B class is extended by C class. So it is grandparent बोल सकते हो आप. A is grandparent, it is parent, child. Right? So C will have all the properties from B class and B class will have properties from A class. So technically C has all the properties from A as well as B class. इसे बोला जाता है multiple inheritance. Is it supported in Java? Yes, it is supported in Java through classes as well as interface. Simple है? Okay. Now what is cyclic inheritance? When one class tries to extend itself, tries to extend itself. Now it is not supported in Java. It is not Java through classes as well as interface. Okay? एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा डिफाइन करते हो क्लास ए एक्सटेंड्स ए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर, तो मिलेगा कंपाइल टाइम एरर. तो वन क्लास इज ट्राइंग टू इटसेल्फ, दिस इज प्रॉब्लम. ठीक, समझ में आ रहा है? साइक्लिक इनहेरिटेंस, खुद का कोड खुद ही रीयूज कर रहे हो, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. और हायरार्किकल, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं. मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब ये ऐसा मैंने जो शो किया, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, मोर देन वन, मोर देन वन. क्या होता क्या है, व्हाट इज इट? व्हेन वन क्लास, when one class tries to reuse the code from more than one class. मैं समझाता हूँ. लेट्स से मेरे पास दो क्लासेस डिफाइंड है, ठीक है, और एक तीसरा क्लास है. अभी तीसरा क्लास क्या चाहता है कि इन दोनों क्लासेस का कोड रीयूज करे. मतलब आप रीइनहेरिटेंस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो? कहीं ऑलरेडी कोड लिखा है, उसको फिर से रीयूज करना है, इसके लिए आपने क्लास बनाया. ठीक, लेकिन वो क्लास क्या कर रहा है, दो क्लासेस से, एक से ज़्यादा क्लासेस से कोड रीयूज करने का ट्राई करता है. एग्जाम्पल, नाउ सी हियर. हाँ हाँ, वही वही बता रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल, नाउ इन आर केस वी इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम फादर एंड मदर, राइट? वी हैव टू प्रॉपर्टीज. बट जावा में ऐसा नहीं हो सकता, टू क्लासेस एटलीस्ट. आप दो जगह से प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं. प्रॉब्लम क्यों क्यों ऐसे पूछो, राइट? व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम? मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आप मल्टीपल जगह से कोड रीयूज करना चाहते हो एट अ सिंगल प्लेस. यू आर ट्राइंग टू रीयूज द प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन प्लेस. यू आर ट्राइंग टू यूज द कोड फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस. मतलब आप कोड यूज करना चाहते हो, लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन है? बस एक ही क्लास का कोड आप रीयूज कर सकते हो. अगर एक से ज्यादा रीयूज करने का ट्राई करते हो तो उससे क्या बोला जाता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस. यू आर ट्राइंग टू रीयूज द कोड फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस. इज इट सपोर्टेड? इट इज नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू, केयरफुली याद रखना, थ्रू क्लासेस, बट it is supported through interfaces. क्लासेस सपोर्ट नहीं करते बट इंटरफेसेस उसको सपोर्ट करते हैं. अभी ये बहुत बहुत ट्रिकी, यहाँ पर एंट्री क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ध्यान से याद रखना. तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाई मल्टीपल
inheritance is not supported through class. याद रखना ये क्वेश्चन। अभी मैं उससे पहले मैं आपको सिंपल सी मतलब आपको समझा दो फिर से मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। आपके पास मल्टीपल क्लासेस आपने डिफाइन करके रखे ए बी एंड सी बहुत सारे होंगे और आप एक क्लास बनाए डी क्लास या कोई भी क्लास हो सकती है नॉट ओनली डी। तो डी क्लास वांट्स टू रीयूज द कोड फ्रॉम ए क्लास आल्सो बी क्लास आल्सो एंड सी क्लास आल्सो एक से ज्यादा है okay? ज्यादा है। नाउ दिस पर्टिकुलर क्लास is trying to reuse the code from more than one classes। क्या बोल रहा हूं मैं? D class is trying to reuse the code from more than one classes। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें फिर? क्लासेस के थ्रू पॉसिबल नहीं। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू क्लासेस? अभी दो का ही एग्जांपल लेते हैं तो इट विल बी इजी। नाउ आई विल टेल यू द रीजन व्हाट इज द रीजन। आप भी बता सकते हो। अब मुझे बताओ डी क्लास दो क्लासेस से कोड रीयूज करने का ट्राई कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ए क्लास में सेम वेरिएबल हो। यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम ए है और यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम है ए। मतलब दोनों क्लासेस में ए नाम का वेरिएबल है। ए क्लास इज आल्सो हैविंग वेरिएबल नेम्ड ए एंड बी क्लास इज आल्सो हैविंग वेरिएबल नेम्ड ए। ए क्लास में एक मेथड है एम और बी क्लास में एक मेथड है एम। तो क्या होगा फिर? बी क्लास विल गेट कंफ्यूज which member to access either from a class or b class, which method to call either from a class or b, right? There is a ambiguity, confusion, there is a ambiguity for this guy। ambiguity मतलब confusion, ambiguity, confusion, confusion है ना उसको कि कहाँ से कोड एक्सेस करो। उसको तो सेम सेट ऑफ कोड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो यू विल गेट यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा किसके थ्रू? यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर थ्रू क्लासेस और इंटरफेसेस के थ्रू चल जाएगा। इट विल वर्क थ्रू इंटरफेसेस। थ्रू इंटरफेसेस इट इज पॉसिबल। थ्रू इंटरफेस कैसे पॉसिबल? विल आल्सो लुक इनटू दैट। अभी के लिए क्वेश्चन है कि थ्रू क्लासेस क्यों सपोर्टेड नहीं है? कैन यू टेल मी द आंसर? कैन यू टेल मी द आंसर व्हाई इट इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लासेस? पहले आपको ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज मल्टीपल इंडेक्स। जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहले डिफाइन करना है कि व्हाट इज मल्टीपल इंडेक्स। व्हेन वन क्लास tries to reuse the code from more than one class, it is called as multiple inheritance। अब जब इनहेरिटेंस होता है तो होता क्या है मुझे बताओ? when one class inherits another class, then uh, code will be its code will be also inherited। Code will be also inherited। Now for the child class, now when one child class actually inherits from more than one class, what will happen? होगा क्या? ambiguity यहाँ पर देखो, is the ambiguity, is there ambiguity? Yes, there ambiguity। ambiguity क्या है कि इस क्लास को दो दो कॉपीज होगी। this class will have two copies of instance variables also
यहाँ पर भी इंस्टेंस वेरिएबल, वहां पर भी इंस्टेंस वेरिएबल. In one class, then child class will confusion have a confusion which member to access, which members to, then child class will have confusion which members to access, कौन से members access करना है. So to avoid this confusion, to avoid this confusion, multiple inheritance, so to avoid this confusion, multiple inheritance is not supported through classes Java. So to avoid this confusion, multiple inheritance is not supported through classes in Java. तो यहाँ पर एक और भी सेम क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो. डायमंड प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, उनका भी आंसर आप सेम दे सकते हो. अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जब इंटरफेस पढ़ेंगे, दैट टाइम अगेन आई विल एक्सप्लेन कि हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड. पहले तो पूछा, आपको टेस्ट किया जाएगा, डू यू नो द कॉन्सेप्ट, इज इट सपोर्टेड थ्रू क्लासेस, इज इट सपोर्टेड थ्रू इंटरफेसेस, ये पहले टेस्ट होगा. इज मल्टीपल इनहेरिटेंस supported through interfaces? If yes, then how? अगर सपोर्ट करता है तो आप बोल सकते हो yes it is supported, yes it is supported. And how it is supported? बहुत सिंपल सा आंसर है. Since interface it is also class, since interface is also a class, which does not contain बहुत इंस्टेंस वेरिएबल्स. उस क्लास के अंदर आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे, इंस्टेंस मेथड नहीं मिलेंगे, इंटरफेस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे, मेथड नहीं मिलेगी, कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता उस क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता, फिर उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक भी नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन डज नॉट कंटेन ऑल ऑफ दिस. ड्यू टू दिस child class does not have any confusion. एग्जाम्पल अभी सिंपल सी चीज यहाँ पर अभी देखते हैं. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अम्बिग्यूटी क्या थी, अगर एक क्लास दो क्लासेस से, नॉर्मल क्लासेस से एक्सटेंड करता है, दोनों जगह पर क्या हो सकता है, सेम इंस्टेंस वेरिएबल सेम इंस्टेंस मेथड हो सकता है. लेकिन इंटरफेस के केस में ये आपको इशू है ही नहीं कि मेरे पास एक इंटरफेस 1 है, इंटरफेस 2 है और यहाँ पर क्लास है ए. यहाँ पर कोई ए क्लास को कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपके पास ये सारा चीज़ है ही नहीं. क्या क्या नहीं है आपके पास? इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर लिख ही नहीं सकते आप, इंस्टेंस मेथड भी लिख नहीं सकते, इंस्टेंस ब्लॉक भी नहीं लिख सकते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर भी नहीं लिख सकते. यहाँ पर भी सेम चीज़, इस पर्टिकुलर ए क्लास को कोई कंफ्यूजन नहीं, ए क्लास विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं. करेक्ट.
We will talk about that object creation and everything. So these interfaces are incomplete classes because इसमें ये सारी चीजें नहीं होती, इसलिए इन क्लासेस का हाँ करेक्ट नहीं करेक्ट कर चलो नो प्रॉब्लम. इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. विल टॉक अबाउट इन द अब्स्ट्रैक्शन क्योंकि इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट क्लास होती है. क्यों क्रिएट नहीं कर सकते विल अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें अब्स्ट्रैक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन. क्लास इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट नहीं कर सकते हो, अभी के लिए सिंपल आंसर है दैट इज अ इनकम्प्लीट क्लास. कैन यू क्रिएट अ बिल्डिंग if your plan is incomplete, right? So that class is incomplete class, so that's why you cannot create the object. तो आप बोलोगे ऐसे इनकम्प्लीट प्लान का या इनकम्प्लीट क्लास का क्या यूज, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, यहाँ पर क्लियर है. मल्टीपल इनहेरिटेंस, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं. ऑल ऑफ दीज व्हाट एवर आई मेंशन एवरीथिंग इज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना. बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक, ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस. देन वी हैव हायरार्किकल. हायरार्किकल क्या होता है? हायरार्की मतलब एक आपने क्लास डिफाइन किया और उसको रीयूज किया मल्टीपल जगह पर. एक क्लास का कोड लिखा है, उसको आप बहुत जगह पर यूज कर सकते हो, जैसे आप कॉलेज में करते थे. एक बंदा होमवर्क करता था, बाकी सारे लोग उसको कॉपी करते, यूज टू कॉपी पेस्ट एज इट इज. तो वन क्लास, एक बार आपने सारा मेहनत कर लिया, सब लोगों ने उसको कॉपी कर दिया और दे आर ट्राइंग टू रीयूज. तो वन क्लास, व्हाट इज हायरार्किकल? one class members are reused by more than one classes. One class members are reused by more than one classes. Is it supported? Yes, it is supported in Java. It is supported in Java through classes as well as through interfaces. It is supported through classes as well as through interfaces also. Okay. Example, I have class A and I have class B extends A, and I have class C extends A, class D extends. अब यहाँ पर देखो हम फॉलो कर रहे हैं क्या? मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर हायरार्की है. We have hierarchy. Now we define the A class. Now A class is reused by these many classes. So once you define the class and its code is reused by these many classes. You define code once and you reuse this code across multiple classes. तो A क्लास का कोड कितने सारे क्लासेस ने रियूज किया? B, C and D. ठीक, हाइब्रिड. When we combine multiple inheritance with any other type, of inheritance, it becomes hybrid. मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ दूसरा और कोई कॉम्बिनेशन करते हो तो उसे बोला जाता है हाइब्रिड. इज इट सपोर्टेड थ्रू क्लासेस? नो, इट इज नॉट सपोर्टेड थ्रू classes, but it is supported through interface. ठीक, हाइब्रिड कैसे? लेट मी डिफाइन दिस. मिक्सचर ऑफ ऑल.
हमने क्या कर दिया, यू डिफाइंड देयर इज वन क्लास, B class, C class. Now C class is trying to reuse code from A class also and B class also. Usually interface होगा and C class is extended by some other class. यहाँ पर क्या क्या मिक्स है? Multiple inheritance, multi-level. Yes, so this is called as hybrid. It is supported through interfaces, but it is not supported through classes. It is supported through interfaces, but it is not through. Simple. चलो फिर से एक बार देखते क्या क्या देखा हमने. We have talked about what is inheritance. It is a process of defining or acquiring the properties which are non-private, non-static members. Not only properties, behavior also, from one class to another class. Okay, just a second. Hybrid means why it is not supported through classes. क्योंकि यहाँ पर देखो आपका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑलरेडी है, तो मल्टीपल क्लासेस थ्रू सपोर्ट होगा ही नहीं. होगा तो किससे होगा? इंटरफेस. तो ये सपोर्ट नहीं होगा पार्शियली, आप मतलब इंटरफेस के थ्रू हो सकता है. दिस इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेसेस. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल. इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इसीलिए क्लासेस के थ्रू सपोर्टेड नहीं है. Why it is not supported? Because it contains the multiple inheritance also, and that is not supported by classes. Okay, we'll come back to in the coding also. We will show that one second. We will move to come back. You see here, what is it? We acquire the properties of one class into another class. It represents a is a type of relationship. is a type मतलब child is a type of parent, उसको ऐसे रीड करेंगे. और क्या रीयूज क्या होता है इनहेरिटेंस का? टू रीयूज द कोड. हाउ टू रीयूज द कोड और इनहेरिट द कोड और हाउ टू अचीव इनहेरिटेंस. पहले आप एक क्लास डिफाइन करते हो जहां पर कॉमन डेटा मेथड्स रखते हो. देन वी क्रिएट अनदर क्लास एंड वी यूज द कीवर्ड कॉल्ड एज एक्सटेंड्स एंड इंप्लीमेंट्स फॉर द इंटरफेसेस अलोंग विद द क्लास नेम जहां से आपको कोड रीयूज करना है. Then we will create the object of that subclass or a child class and we start using the variables and methods. Parent class या super class या base class क्या होता है? ऐसा क्लास जहां पर आपने कॉमन डेटा और मेथड्स लिखी है, उस क्लास का कोड आप रीयूज करना चाहते हो. देन चाइल्ड और सब क्लास और डिराइव्ड क्लास क्या होता है? इट इज अ क्लास दैट यूजेस और इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास. इंटरफेस, ये कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इन एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, वो इनकम्प्लीट क्यों होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है. दैट इज पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. So inheritance, it is type of a class that is incomplete class. How do we create the interface? This is how we create the interface. We'll talk about the interface and everything. Then what are the types of inheritance? Single level मतलब अगर एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रहा है only, that is called as single level and it is supported through classes as well as through interfaces. And multi-level inheritance, when one class extends more than one, मतलब ऐसा, this is multiple नहीं, multi-level. Multi-level मतलब one class is extended by another class and that class is extended by some other class. तो ऐसे बोल सकते हो one parent class, this is a parent class which extends another class. That is also called as multi-level. Is it supported in Java? Yes, it is supported through classes as well as through interfaces. Cyclic inheritance, one class extends tries to extend itself, it is called as cyclic और ये supported नहीं है Java में through classes as well as through interfaces. मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत डिटेल में हमने देखा है कि एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस का कोड रीयूज करना चाहता है. व्हेन वन क्लास ट्राइज टू एक्सटेंड more than one classes, that is also called as multiple inheritance. It is not supported through interface, it is not supported through classes, but it is supported through interfaces. Why it is not supported through classes? Because अगर एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस से कोड रीयूज कर रहा है
अगर दोनों पेरेंट क्लास में सेम मेंबर्स है तो चाइल्ड क्लास आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से एक्सेस करना है, आइदर दिस क्लास और दिस क्लास, तो इसलिए वो सपोर्टेड नहीं है. टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट थ्रू क्लासेस. Is multiple inheritance supported through interfaces? If yes, then how? Yes, it is supported because इंटरफेस के अंदर आपको इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, कंस्ट्रक्टर ब्लॉक, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी. दैट्स व्हाई देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर द चाइल्ड क्लास विच मेंबर टू एक्सेस, क्योंकि ये मेंबर नहीं रहेंगे नहीं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ड्यू टू दिस चाइल्ड क्लास डज नॉट हैव एनी कंफ्यूजन एंड इट इज सपोर्टेड. हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास आपने डिफाइन किया, उसका कोड मल्टीपल अदर क्लासेस यूज कर सकते हैं. तो वन क्लास मेंबर्स आर यूज बाय मोर देन वन क्लासेस, इस चीज को बोला जाता है हायरार्किकल inheritance. And it is supported in Java. Yes, it is supported in Java through classes as well as interfaces. Class A is extended by class B, class C and class. So all these class B, C and D are extending from A class. मतलब A class का कोड आप मल्टीपल जगह पर रीयूज कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो फाइन. दैट इज द इंटेंशन ऑफ इनहेरिटेंस. मतलब कोड एक बार लिखो और मल्टीपल जगह पर यूज करो. दैट इज द इंटेंशन एक्चुअली. हाइब्रिड व्हेन यू हाँ ठीक है. ये कौन सा है? हायरार्किकल. और ये मल्टीपल, नॉट मल्टी लेवल. मल्टी लेवल मतलब दिस इज मल्टी लेवल. आप बोलोगे कि ये क्लास तो मल्टीपल क्लासेस से लेके आ रहा है, राइट? लेकिन ये इमीडिएट कहाँ से लेके आ रहा है? इस क्लास का. अगर आप मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन आपको, सेम लाइन पे मेरा क्लास है ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास. दिस इज मल्टी लेवल. यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है ए. तो सी क्लास इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम बी क्लास, तो उसके पास ए का कौन सा कॉपी है? बस ओनली दिस वन. ये किसके पास होगा? बी के पास. बी के पास दो ऑप्शन है, एक खुद का भी है और पेरेंट का भी है. सिंपल. यहाँ पर भी ए हो सकता है, यहाँ पर ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 10 और ए इक्वल टू 100. अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सी इक्वल टू न्यू सी डॉट ए करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? ए इक्वल टू 1 आएगा. विल टॉक अबाउट दिस. खुद का ही प्रॉपर्टी तो खुद का यूज करेंगे. ये समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? ओके. नाउ एज पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है. इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हो? हाउ डू वी अचीव इनहेरिटेंस? यू नो दैट, राइट? हाउ टू अचीव इनहेरिटेंस. यहाँ पर आपको तीन चीजें आपको यहाँ पर भी याद रखनी है. या तीन चीजें हैं. करेक्ट. वी अचीव इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड. यहाँ पर आपको तीन चीज याद रखना है हमेशा. वन क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास. वैलिड कॉम्बिनेशन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वैलिड कॉम्बिनेशन की. इसके अलावा दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. आपको बस ये तीन चीज याद रखना है. वन क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास. वन इंटरफेस extends another interface and one class implements another. बस ये तीन चीजें आपको याद रखना है. क्लास क्लास एक्सटेंड्स, इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड्स और वन क्लास इंप्लीमेंट्स अनदर इंटरफेस. याद रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन क्लास 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 इंटरफेस इंटरफेस क्या होगा? कौन सा कीवर्ड होगा? एक्सटेंड्स एक्सटेंड. और वन क्लास इंप्लीमेंट्स अनदर रहेगा. ये तीन चीजें याद रखना.
इसके अलावा दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा विदर वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, इम्प्लीमेंट अ क्लास। तो आपको पास 3 ये वैलिड सिनेरियोज है, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। रिमेंबर दिस वैलिड सिचुएशंस एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर अदर रेस्ट ऑफ द। वन क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस, वन क्लास इम्प्लीमेंट्स अनदर। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको कोई टेंशन नहीं रही। ठीक, what is it, why do we need this, different types, how to achieve, and different other questions we have seen. चॉकलेट लेके आओ आप, कितने लोग हैं, सबको चॉकलेट लेके आओ। कौन सा खाना चाहिए, वो लेके आएगा, उसको पनिशमेंट। ललित, ललित ने रेज कर दिया, ललित आपका मैं खा लेता हूँ। रोहित जाओ जल्दी फटक से नीचे, 4 बाजार है नीचे। हाँ, नहीं नहीं ज़्यादा टाइम, अभी जाओ फटक से, टाइम है अभी और क्लास चलने वाली है। क्या क्या, अरे नीचे है ना स्टार बाजार, दुकान कितनी बड़ी है नीचे, स्टार बाजार है नीचे, जाओ फटक से। ये किसका था फिर, स्वप्निल। प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, इनहेरिटेंस। हाँ, अभी आपको और 4 कंपोनेंट्स हमें सीखना है, और 4 चीज़ें यहाँ पर अभी जब आप एक्चुअल में जब इनहेरिटेंस स्टार्ट करोगे यूज़ करना, लेट्स ट्राई डूइंग दैट। कैसे करते हैं उसको, I will define a class, parent class, and I will define some variables here. A will define some method also, void m1, write this. So this method is from parent class. Now I create another class called as child, and I want to reuse the code which is there in the parent class. So I use extends parent class. So we use, that's it. उसके बाद आपको क्या करना है, मेन मेथड लिखो and you just create the object of child class. Start using the method child, right? तो आप child dot a get the access, yes, के बाद आपके पास है डॉट, ये मेथड कहाँ से मिल रही है आपको, ये वेरिएबल्स कहाँ से मिल रहे हैं, पेरेंट क्लास का, राइट। तो याद रखना जब भी आप ऐसे चाइल्ड क्लास बनाते हो, you get access to the parent class variables and methods which members, non static non private, कौन से members, non static non private members you get access, will we go to this। now this is how we are reusing the code। आपने ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन आपको कुछ कोड लिखने की जरूरत पड़ी क्या आपको, do we have anything inside this particular child class, there is nothing, but still we are able to get the methods variables from the, so this is a simple use case I can tell you how do we reuse the code, ठीक है। now let's see this, now I have some other things also here। uh, when you create the child class object, when you create the child class object, now child class में तो कुछ है नहीं यहाँ पर, देखो आप, can you see is there anything,
तो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा होगा? तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड? नहीं, यहाँ पर 3, 3 नहीं क्रिएट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन चाइल्ड देखो आप यहाँ पर ये वैल्यूज कहाँ से मिली आपको? ये वैल्यूज पेरेंट क्लास। So technically, when you create the object of child class, you are also creating object of parent class. So in order to create the child class object, तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले? parent class का. How can I say that parent class का मतलब parent class का object create होता है? How can we say that? आप confirm कर सकते हो? class construct. अगर object parent class के भी create होता है, तो कैसे confirm करोगे आप? How will you confirm that? मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, एक मैंने स्टेटमेंट बोला कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. हाउ कैन आई से दैट? तो आप देखो कंस्ट्रक्टर कॉल, लेट्स मी डिबग दिस. जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, इट इज नथिंग बट पहले उसका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, प्लस उसका कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज होगा, दैट विल बी आल्सो क्रिएटेड. अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आप कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहे हो? चाइल्ड क्लास का. चाइल्ड क्लास नहीं, यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर गया? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. फिर वापस आएगा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के पास, और फिर उसका ऑब्जेक्ट parent class constructor child class. So can I say that when you create the object of child class, you are also creating object of parent class. तभी तो आपको उसकी वैल्यूज आपको मिलेगी. उसकी वैल्यूज कब मिलेगी आपको? जब ऑब्जेक्ट होगा तभी. सो यू क्रिएट अ ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड. ठीक. अभी यहाँ पर मैं कुछ खुद की भी मेथड यहाँ पर कुछ वेरिएबल क्रिएट करता हूँ. यहाँ पर मैं खुद का इसका कुछ वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ. लेट्स से डी. नाउ डी इज नॉट देयर. डी इज नॉट देयर इनसाइड द पेरेंट क्लास. चाइल्ड डॉट डी इक्वल टू 100 कुछ वैल्यू सेट करता हूँ मैं 100. यहाँ पर यहाँ से आपका कंट्रोल जाएगा पेरेंट क्लास, और यहाँ पर दिस देखो, दिस मतलब आपका एक्चुअली ए बी सी डी सारा क्या है? ए बी सी डी सारा. अभी तक आपका चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है. अभी पहले किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? पेरेंट का. पेरेंट का. और फिर यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट अभी वैल्यू सेट हो रहा है चाइल्ड का. चाइल्ड का ऑब्जेक्ट देखो अभी ये बन गया एबीसी. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट एंड. यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज देखो, यहाँ ए बी सी एंड क्लियर है? ओके. तो ये वॉट एवर हमने किया इसे बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. अभी ये कौन सा इनहेरिटेंस हमने यूज किया? सिंगल लेवल. नाउ देयर इज वन मोर थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले see this. Now let's say I have a class and I have this constructor. B class I'm creating, and B class extends. This is B class constructor. Now I create object of B class BB equal to new. तो यहाँ पर जब भी अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पर यहाँ से कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, आप कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो? बी क्लास का. तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा. यस. लेकिन यहाँ पर दो चीजें चेक होती है, मैंने आपको पहले भी बोला था. व्हाट इज दैट? मैं क्लास कंपोनेंट था इंस्टेंस ब्लॉक के टाइम. So it checks first thing in every constructor what it does, call to the same class if it is call to the same class constructor or super class. अभी यहाँ पर तो सेम क्लास कंस्ट्रक्टर आपने कॉल नहीं किया, के बाद ये नहीं होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा इंस्टेंस ब्लॉक. लेकिन हर एक कंस्ट्रक्टर से क्या होता है ना, देर इज ऑलवेज कॉल, देर इज ए ऑलवेज
कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आप लिखो नहीं लिखो फिर भी कंस्ट्रक्टर का कॉल कौन सा होगा? यहाँ पर एक लाइन लिखी होती है, अगर आप नहीं लिखते हो तो भी ये ऑटोमेटिक ऐड होती है। So you do not write, this line is automatically added in every constructor. What I am talking about, every constructor, कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। तो every constructor in Java, every constructor in Java, there is a implicit call to the super class। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी वहां पर कॉल होती हो, मतलब चाइल्ड क्लास का, सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने से पहले वो पहले किसका एग्जीक्यूट करेगा? सुपर क्लास। और आपको पता है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन योर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन विल बी फिनिश्ड। तो यहाँ पर याद रखना, एवरी कंस्ट्रक्टर इन जावा देयर इज अ इम्प्लिसिट कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। if you want to explicitly call if you want to explicitly call the सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, तो आप यूज कर सकते हो सुपर। कहां पर लिखना है आपको? कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर। इफ यू वांट टू एक्सप्लिसिटली कॉल दी सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास, तो आपको ये लिखना पड़ता है सुपर। लेट्स सी दिस। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी क्लास डिफाइन करी, ए क्लास, और यहाँ पर बी क्लास। बी क्लास में क्या किया? कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले एक लाइन लिखी है मैंने, क्या लिखी हो? सुपर। सुपर यहाँ से कॉल हुआ। अगर आप नहीं भी लिखते हो फिर भी ये लाइन ऐड होती ही होती है हर एक कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसे डिबग कर रहा हूँ। अब यहाँ से कंस्ट्रक्टर कौन सी कॉल होगी? बी क्लास की। तो कंट्रोल आएगा यहाँ पर रुकेगा, या क्योंकि हमने यहाँ पर डिबग पॉइंट लगाया। देखो यहाँ पर कंट्रोल जाएगा बी क्लास, और यहाँ पर फर्स्ट लाइन यहाँ पर हुआ, यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जा रहा है? कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास। ये पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में फिर कंट्रोल वापस आएगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। अगर कोई इंस्टेंस ब्लॉक होगा उस पर्टिकुलर क्लास का तो इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट वोंट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। फिर कंस्ट्रक्टर का रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर देखो बी क्लास कंस्ट्रक्टर डन। तो ए क्लास कंस्ट्रक्टर, बी क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसको कमेंट आउट भी करता हूँ ना, तो आपका सेम आंसर आएगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया? बी क्लास का, मतलब चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, इट विल कॉल दी पेरेंट क्लास, इट विल कॉल दी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर देखो आपका आंसर अभी भी सेम ही आंसर आ रहा है। ये क्लियर है सबको? अब इसको और थोड़ा कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग। आई एम जस्ट डूइंग दैट वन मोर थिंग। आई हैव p class, one more example I am doing, p class, I have the p class constructor। ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चंस। मैंने इस इनहेरिटेंस टॉपिक होने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखे हैं, तो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन बाय एंड ऑफ दिस इनहेरिटेंस। ठीक है? तो p क्लास कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसके बाद मैंने q क्लास लिखा है, q क्लास एक्सटेंड्स p क्लास, ये q क्लास कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं मैं इसे। फिर q क्लास इज एक्सटेंडेड बाय r क्लास। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर कैसा है, सबसे टॉप में p, उसके बाद q एंड उसके बाद r, और फाइनली में मैंने यहाँ पर मेन मेथड लिखी है जहां पर मैं r क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू r। Here let's debug this।
तो सबसे पहले आर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, आर, पहले कहाँ पर जाएगा, आर में, आर से कहाँ पर जाएगा, क्यू में, और क्यू से कहाँ पर जाएगा, पी में। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा अभी, देखो यहाँ पर ये लाइन देखो, आपने मेन मेथड से, ये मेन मेथड है आपका, मेन मेथड से कंट्रोल गया आर के, आर कंस्ट्रक्टर में, फिर आर से कंट्रोल गया क्यू में, और क्यू से कंट्रोल गया पी में। अभी पी एग्जीक्यूट होगा, पी इज प्रिंटेड, देन कंट्रोल विल कम टू क्यू, क्यू कंप्लीट होगा, उसके बाद कंट्रोल आएगा आर के पास, आर कंप्लीट हो गया, और दिस हाउ ऑब्जेक्ट इज पी क्लास कंस्ट्रक्टर, क्यू क्लास कंस्ट्रक्टर एंड आर क्लास कंस्ट्रक्टर। ये ऑटोमेटिकली कैसे हुआ, इवन दो यू डू नॉट राइट, देयर इज वन ऑलरेडी वन लाइन एडेड, व्हाट इज दैट, पर यहाँ पर भी आपका ये लाइन ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पर इसका कोई पेरेंट है नहीं, तो यहाँ पर कुछ डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर से मैं इसे डिबग पे चलाता हूँ, आई विल डिबग दिस, है यहाँ से कंट्रोल जा रहा है मेरा आर, आर में मेरा सिंपल कॉल किसको जा रहा है, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, हु इज सुपर क्लास फॉर आर, क्यू, क्यू फिर इसके सुपर को कॉल कर रहा है, तो क्यू का सुपर कौन है, पी, पी यहाँ पर उसका कोई सुपर है नहीं, तो डायरेक्टली ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा पी का, तो पी दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड, देन कंट्रोल गोज बैक टू द क्यू, क्यू का एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर कंट्रोल गोज बैक टू द आर, आर का ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज कंप्लीट। इस चीज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग, it is a process of calling one constructor from another constructor. So how to call super class constructor of child class? We can call super class constructor from child class constructor. We can call super class constructor from child class constructor using super, and we can call same class constructor from same class another constructor using, अरे सुपर नहीं बाबा, सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो आप, we can call the same class constructor from same class another constructor using, हाँ, yes, so by default that is super. अरे मतलब एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली कॉल करना चाहते हो, हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये आपको बोलना है कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो एवरी कंस्ट्रक्टर इन जावा देयर इज अ इम्प्लिसिट कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ये आपको याद रखना है। मतलब इनहेरिटेंस में क्या होता है, इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली क्या होता है, सुपर को कॉल जाएगी। अगर आप एक्सप्लिसिटली भी कॉल करना चाहते हो सुपर क्लास को, तो आप कैसे लिखोगे, सुपर, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल जाएगी जाएगी, आप करो ना करो, इसको कॉल जाएगी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। कोई भी क्लास हो दुनिया की जावा में, तो हर कंस्ट्रक्टर में, कोई भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, तो उसमें से बाय डिफॉल्ट किसको कॉल जाती है, अगर आप कोई दूसरा कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे उसमें से, तो सुपर मतलब उसके पेरेंट क्लास को कॉल जाती है। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्टर हो जावा में, वो क्या करता है, इंटरनली इम्प्लिसिटली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आगे अभी दूसरा एक क्वेश्चन हमने दिस कीवर्ड दिखा था, दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड का यूज करके हम सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, दिस कीवर्ड का यूज करके आप सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वी हैव सीन दैट कंस्ट्रक्टर चेनिंग देयर आल्सो, यस, so using this we can call same class constructor, we can call the same class constructor from
अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, मतलब एक क्लास के अंदर दो तीन कंस्ट्रक्टर है, तो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है सेम क्लास का, तो आप यूज करोगे दिस, राइट। और चाइल्ड क्लास से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है एक्सप्लिसिटली, तो क्या यूज करोगे, सुपर, क्या यूज करोगे, सुपर। परफेक्ट, क्लियर ये वाला, ठीक है। एंड हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स वी कैन कॉल फ्रॉम द गिवन कंस्ट्रक्टर, we can call maximum of only one constructor from the given constructor, तब एक कंस्ट्रक्टर में कितने कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो दूसरे, ओनली वन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, constructor call must be the first line, the otherwise क्या होगा, otherwise we get compile time error, otherwise we get compile time error, constructor call must be the first line in the constructor, otherwise we get the compile time error। यहाँ पर देखो मैं सुपर इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर get the compile time error, get the compile time error, so it should be clear ये वाला, okay। now order of execution of static block, instance block and constructor inheritance। अब मेरे पास स्टैटिक ब्लॉक है, इंस्टेंस ब्लॉक है, कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में, बोल रहा हूँ मैं इसको, आप अभी कंस्ट्रक्टर चेनिंग में अभी ओके दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, आई विल जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। आई हैव पेरेंट क्लास एंड यहाँ पर मेरे पास तीन चीज़ें हैं, क्या क्या तीन चीज़ें हैं मेरे पास, स्टैटिक ब्लॉक है मेरे पास, पेरेंट क्लास स्टैटिक ब्लॉक, देन पेरेंट क्लास ब्लॉक, और मैं एक और अभी यहाँ पर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्ट, दैट इज पेरेंट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोगों को आता नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक, ब्लॉक और कंस्ट्रक्ट। मैं इसको चाइल्ड क्लास भी बना रहा हूँ, और चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चाइल्ड क्लास स्टैटिक ब्लॉक, चाइल्ड क्लास इंस्टेंस ब्लॉक, चाइल्ड क्लास, ठीक। I will write the main method also in this particular child class। Now, if I run this program, what is the output? There is nothing inside the main method, right? What is the output? Can I run this program? Yes, I can run this. What is the output? Static block, child class, static block। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, static block of parent class, static block of parent class, then child class का static block। अब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किसका, चाइल्ड क्लास का। नाउ यू टेल मी द एंटायर ऑर्डर। सबसे पहले क्लास लोड होगा, सबसे पहले कौन सा क्लास लोड होगा, अगर आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या चाइल्ड क्लास अगर आप लोड करते हो तो उससे पहले क्या लोड होगा, पेरेंट क्लास, क्योंकि चाइल्ड क्लास किससे बनता है, पेरेंट क्लास से।
The first unit how the parent class loaded, then the child class will be loaded, right? Then static block of parent class, static block of child class, that is first thing. उसके बाद अभी आप ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हो, चाइल्ड क्लास का, लेकिन आपको पता है कि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नथिंग बट फर्स्ट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्या होगा, यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर से यहाँ पर दो चीजें फिर चेक होगी, क्या क्या चेक होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल एंड दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक। ये हर एक कंस्ट्रक्टर में चेक होता है, ये हर एक कंस्ट्रक्टर में ये दो चीजें चेक होती है। क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल है या नहीं, अगर है तो कंस्ट्रक्टर कॉल करो, नहीं है तो इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट करो एंड उसके बाद द कोड। अब मुझे बताओ क्या ऑर्डर होगा। जैसे मैं मेन मेथड रन करूंगा तो पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट करने से पहले आपका चाइल्ड क्लास मेथड लोड होना चाहिए, और चाइल्ड से पहले क्या लोड होगा, पेरेंट क्लास। तो फर्स्ट पेरेंट क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड इफ यू सी है पेरेंट क्लास स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास का स्टैटिक ब्लॉक एंड देन कंट्रोल गोस टू द मेन मेथड। तो पहले क्लास लोडिंग होगी पेरेंट क्लास की, उसके बाद चाइल्ड क्लास लोड होगा और फिर मेन मेथड पे कंट्रोल आ रहा है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो किसका, चाइल्ड क्लास का, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर दो चीजें चेक होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल है तो कंस्ट्रक्टर, नहीं तो इंस्टेंस ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, यस, तो कंस्ट्रक्टर किसका, यहाँ पर देखो तो पेरेंट क्लास में भी दो चीजें चेक होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कोई है ही नहीं, तो दूसरी चीज क्या होगी, इंस्टेंस ब्लॉक। तो इंस्टेंस ब्लॉक किसका, पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास का इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा पेरेंट का, क्योंकि ये दोनों चीजें होगी फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर का चीज है, तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। ओके, देन कंट्रोल गोज बैक टू द चाइल्ड क्लास, कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो गया, अभी इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इंस्टेंस ब्लॉक पे कोड कोड आ गया आपका, देखो ये दोनों चीजें हो गई, कंस्ट्रक्टर भी और इंस्टेंस ब्लॉक भी, और फिर आपका चाइल्ड क्लास का रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये आपका प्रोसेस। तो व्हाट इज द ऑर्डर, in order to in order to create the object of child class must be loaded in the memory, and before that parent class must be loaded first, parent class must be loaded in the memory। तब सबसे पहले क्या होगा, parent class will be loaded in the memory। What will be the first thing, parent class बता रहा हूँ, parent class will be loaded first and its static block will be, then child class will be loaded and its static block, ये आपका सेकेंड नंबर का चीज। थर्ड, अभी क्या होगा, when you create the object of child class constructor will be called, and there call to the parent class constructor will happen। Second thing, in that constructor instance block of child class, and then rest of the code in the चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तीन चीजें होगी कंस्ट्रक्टर के अंदर, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो हो गया तो फिर इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास और फिर रेस्ट ऑफ द कोड चाइल्ड क्लास
ना उसके बाद अभी कॉल कहां पर गई चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर will be called, and there again three things, ये सेम चीजें पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में भी कॉल्ड टू द पेरेंट क्लास उसका कंस्ट्रक्टर होगा तो इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट क्लास एंड रेस्ट ऑफ द कोड इन द पेरेंट क्लास। अभी ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या होगा, इफ आई वांट टू गिव समवन ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूशन होगा, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास, देन ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, देन हाँ देन एंड ऑफ, चलो एक बार मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ क्या क्या होता है। सी दिस, नाउ आई हैव अ पेरेंट क्लास, यहाँ पर मेरे पास तीन क्या क्या, पहले स्टैटिक ब्लॉक, ब्लॉक और कंस्ट्रक्ट। ये हो गया आपका पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास क्रिएट किया यहाँ पर क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एक ब्लॉक ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर आपने मेन मेथड लिखी और मेन मेथड में आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना मेन मेथड। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा आपका स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास, थर्ड यहाँ से अभी कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है, यहाँ से कंस्ट्रक्टर का, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के पास दो ऑप्शन है, एक तो पेरेंट कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कॉल होगा, नहीं तो इंस्टेंस ब्लॉक, वो भी नहीं है तो सीधा डायरेक्टली उसका कंस्ट्रक्टर का कंटेंट प्रिंट करना। लेकिन चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर आएगा, कंट्रोल आएगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी तीन चीज चेक होगी, उसका कोई कंस्ट्रक्टर कॉल, इंस्टेंस ब्लॉक और फिर कंस्ट्रक्टर का सेकेंड अभी क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, ये थर्ड इंस्टेंस ब्लॉक, फोर्थ फिर कंट्रोल आएगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल वाला खत्म हो गया, उसके बाद नीचे आएगा इंस्टेंस ब्लॉक, तो ये आपका फिफ्थ नंबर होगा और सिक्स नंबर आपका। चलो इसको मैं डिबग करता हूँ फिर से एक बार, सी हियर पेरेंट क्लास स्टैटिक ब्लॉक इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास सेम चीज है आपके पास भी, यहाँ पर भी स्टैटिक ब्लॉक इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ से अभी देखो, जैसे मैं इस मेथड को रन करना चाहता हूँ, तो मेथड रन करना मतलब प्रोग्राम रन करना, प्रोग्राम रन कैसे होता है, जावा सी, जावा और क्लास का नाम लिखते हो, तो क्लास का नाम लिखा मैंने चाइल्ड, तो चाइल्ड क्लास मेमोरी में लोड होने से पहले क्या लोड होगा, पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास मेमोरी में लोड होगा तभी उसी टाइम पे क्या एग्जीक्यूट होने वाला है, पेरेंट क्लास का स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पर पेरेंट क्लास का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, फिर कंट्रोल कहाँ पर आया, चाइल्ड क्लास के स्टैटिक ब्लॉक, ये हो गया क्लियर, ये फर्स्ट दो चीजें क्लियर है, पेरेंट क्लास स्टैटिक ब्लॉक चाइल्ड क्लास स्टैटिक ब्लॉक, दैट इज डाउन। Now your both the classes, parent class is also loaded in the memory and child class is also loaded in the memory and your actual main method execution starts. अभी कंट्रोल आया मेन मेथड के पास, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का और यहाँ से आपने कॉल किया चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर चीजें आएगी, यहाँ पर दो चीजें होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल अगर सेम क्लास का हो तो सेम क्लास का, नहीं तो पेरेंट क्लास का, दूसरा चीज क्या है इंस्टेंस ब्लॉक,
अभी कंस्ट्रक्टर कॉल इमीडिएटली हो रहा है, क्यों? कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इमीडिएटली कॉल क्यों होगा, किसका? क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली लिखा होता है सुपर, क्या लिखा होता है? सुपर इमीडिएटली लिखा होता है। यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस कंट्रोलर के, इस पेरेंट के पास, और यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी सुपर होता है, लेकिन सुपर के लिए कुछ है नहीं, तो ये होगा ही नहीं डायरेक्टली। फिर कंट्रोल कहाँ पर जाएगा? इंस्टेंस ब्लॉक के पास। तो अभी फिर से एक बार देखो, यहाँ से कंट्रोल जाएगा कहाँ पर? चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। फिर यहाँ से कंट्रोल जाएगा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, और सुपर कार के कंस्ट्रक्टर के पास कंट्रोल जाएगा इंस्टेंस ब्लॉक के पास। आया कहाँ पर कंट्रोल? चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, और सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर से इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ दी, और फिर यहाँ से कंट्रोल आएगा वापस पेरेंट क्लास इंस्टेंस ब्लॉक, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर वापस आएगा कंट्रोल कहाँ पर? चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर ये हो गया, अभी दूसरा चीज कौन सा है? इंस्टेंस ब्लॉक। तो एग्जीक्यूट क्या होगा? चाइल्ड क्लास इंस्टेंस ब्लॉक, और फिर ये एग्जीक्यूट होने के बाद चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्ट। Now object creation is complete, and that's how we complete the object creation. So what is the final execution order? Final execution order, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास, ये हो गया। उसके बाद फिर ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास ऑफ, याद रहेगा। लेकिन इंटरनली कैसे काम होता है पता है, राइट? थिंक ऑफ दिस एज पेरेंट क्लास। यहाँ पर मेरे पास तीन चीजें, स्टैटिक ब्लॉक, ब्लॉक, ऑफ पेरेंट क्लास। यहाँ पर भी सेम चीज है मेरे पास, स्टैटिक ब्लॉक, चाइल्ड क्लास। मैंने अब जैसे ही मेन मेथड कहीं पर लिख दिया, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ऑफ पेरेंट क्लास, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सी क्लास का, विल क्रिएट सी सी इक्वल टू न्यू सी, तो कंट्रोल यहाँ से कहाँ पर आएगा? कंस्ट्रक्टर के पास। और यहाँ पर दो चीजें होगी, क्या दो चीजें होगी? कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास और सेम कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, जो भी होगा, और दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ से कंट्रोल आएगा इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के पास, और यहाँ पर भी दो चीजें एक होगी, उसका कोई सुपर क्लास, तो इंस्टेंस ब्लॉक, तो इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले अभी 1 2 3 4 5 द ऑर्डर, ठीक है। चलो let's go through this, and we will continue tomorrow again, because there are a lot of stuff again we have, and we will need one, ठीक है। चलो, thanks guys.